Welcome guys, next concept is called matching concept. Well, an important objective of business is to determine profit periodically. आप हर साल जानना चाहते हैं कि आपकी financial performance क्या रही है. For that it is necessary to match revenues of the period with the expense of that period to determine correct profit or loss for the accounting period. तो उसके लिए आप ऑब्वियसली देखना चाहेंगे हमेशा कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी मेरा रेवेन्यू आया, जो भी मैंने सेल करी है, उसका अमाउंट क्या है और उस सेल को अचीव करने के लिए कितने मैंने एक्सपेंस किए. इट कुड ओनली बी करेक्टली मेजर्ड व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू. तो एक पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू को मैच करिए उसके एक्सपेंडिचर से और फिर देखिए दोनों का डिफरेंस. सो इन शॉर्ट द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू रादर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड. तो हम उसको आपस में कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं. ये जो कैश रिसीव्ड और कैश पेड की बात करी है रादर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड, हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट में इसकी बात करेंगे. कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. वेल, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सबसिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट. Asset is recorded at cost at the time of its purchase but is systematically reduced by charging depreciation. ये पूरी चीज़ इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी. For example, an asset is purchased for rupees 5 lakh and if at the time of preparing final account, even if its market value is say 4 lakh or 7 lakh yet, the asset shall continue to be shown at the purchase price of rupees 5 lakhs. Accrual concept. तो ये जो बात थी ना, ये in short the expenses of an accounting period are matched against related revenue rather than cash received or cash paid. वो यहाँ से सीखते हैं. Accrual. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered and is immaterial whether the cash is received or not. Suppose मैंने फेब में माल बेचा, पेमेंट मई में आई है, तो मुझे एंट्री फेब में ही कर लेनी है बेटा. Similarly, expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenue whether the cash is paid for them or not. Suppose मैंने एक महीना काम कराया किसी से, सैलरी अभी उसे दी नहीं है, सैलरी में सपोज उसको बाद में दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं सैलरी दे रहा हूँ तब रिकॉर्ड नहीं करना. जब आपने काम करा लिया और लीगली आप बाउंड हो उसको पे करने को, तभी रिकॉर्ड कर दीजिए. Thus, to ascertain true profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of accounting period, all expenses and incomes are recorded whether actual cash has been paid or received or not. और आप खुद सोचो, मैं अगर गुड्स बेचता हूँ, मैंने क्रेडिट पे भी बेचे, मैंने कैश पे भी बेचे, तो मैं दोनों ही एंट्री लूँगा ना यार, कैश वाली भी क्रेडिट वाली भी. खाली ये थोड़ा ना देखूंगा कि भाई जब कैश आएगा तभी मैं एंट्री लूँगा. नो. एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं वेदर कैश इज पेड और नॉट, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट. एंट्री हो गई है, सपोज आपने गुड्स बेच दिए तो गुड्स निकल गए ना स्टॉक से, एंट्री तभी कर दो, कैश जब आएगा तब आएगा. Accounting period principle. According to this principle, the life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals. Suppose आपने एक बिजनेस किया 10 साल, तो आप सीधा 10 साल के बाद थोड़ा ना परफॉर्मेंस देखोगे कि आपने क्या खोया क्या पाया. आप हर साल कोशिश करोगे ये देखने की कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड. So users of financial information like bank and management require financial information at regular interval to assess the performance. Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise. So in view of the above, the life of an enterprise is broken into smaller period, usually 1 year. उसी को हम कहते हैं accounting period. और उसी में फिर हम उसको जज करते हैं financial performance को. Revenue recognition accrual concept का एक पार्ट भर है. According to this concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. For example, an enterprise sells goods in May 2021 and receives the amount in June 2021. Now, revenue of this sale should be recognized in May 2021 when the goods are sold because the legal obligation to receive the amount is established in May 2021. पेमेंट कभी भी आए, आपकी एंट्री हो गई है, गुड्स निकल गए, आप उसी वक्त रिकॉर्ड करिए. कंसिस्टेंसी अजम्पशन. Accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. Consistency eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable. देखिए, सपोज डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो अगर आप एक साल एसएलएम, एक साल डीबीएम, एक साल एसएलएम, एक साल डीबीएम करते हो, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आपने एक बार एक मेथड चूज कर लिया तो बी कंसिस्टेंट विद इट. इसका ये मतलब नहीं आप कभी चेंज नहीं करोगे. अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि नहीं यार आई नीड टू चेंज, यू कैन, बट फ्रीक्वेंट चेंजेस आर नॉट गुड. So in short, method once chosen and applied should be used consistently year after year to make the financial statements comparable. Going concern assumption.
Well, according to this assumption, it is assumed that business shall continue for a long period of time and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. मतलब हम मान के चलते हैं कि जब हम एक सीए जो है अकाउंट्स जब बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में यही एक भावना रहती है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो उसी के बेसिस पर ये नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज वन हुज बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड. तो अगर आप ये मान के नहीं चलोगे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, गोइंग कंसर्न पे चलोगे नहीं आप, तो सारे खर्चे रेवेन्यू है, क्योंकि आपको तो लगेगा मेरा बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है. So going concern assumption basically says that while making accounts, an accountant should keep in mind the view क्या उसका business लंबे समय तक चलेगा. Accounting standards, आइए बात करते हैं accounting standards. So accounting standards are set of guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statement. जैसे आप आगे रूल सीखोगे डेबिट एंड क्रेडिट के, तो वो एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आप ये कह सकते हो एक तरीका होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके हिसाब से जिसको फॉलो करके आप अकाउंट्स तैयार करते हो. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट्स लाइक एक आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको अकाउंट्स तैयार करने हैं. They are prescribed to be followed in preparing and presenting the financial statements so that the financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the users. और common rules इसलिए क्योंकि फिर हर कोई उसी रूल के बेसिस पर देखेगा आपके अकाउंट्स को और समझने में भी आसानी रहेगी उसको. यूटिलिटी क्या या एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? Well, these provide the norms on the basis of which financial statements should be prepared. These ensures uniformity in the preparation and presentation of financial statements. तो पहला बेटा एक नॉर्म्स हैं, एक रूल्स हैं जिसके बेसिस पर अकाउंट बनेंगे. दूसरा यूनिफॉर्मिटी रहेगी, क्योंकि हर कोई अगर एक ही जैसे रूल्स फॉलो करके करेगा तो ऑब्वियसली डोंट यू थिंक कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हर किसी का सेम तरीके से बनेगा अकाउंट, तरीका सेम रहेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड रिलायबल बाय द यूजर्स एंड these help auditors to auditing the accounts. ऑडिटर्स वो होते हैं जब अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स तैयार कर देते हैं तो ऑडिटर चेक करते हैं कि कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, कुछ चीटिंग वगैरह तो नहीं की हुई. सो ऑडिटर्स को भी आसानी रहती है ऑडिट करने में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाए गए हों अकाउंट्स. Difference between IFRS and GAAP, Indian GAAP, I should say. So IFRS stands for International Financial Reporting Standards. ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, जो कि इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो रूल बेस्ड होते हैं. तो प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड के लिए फ़र्क में वो आप आगे पढ़ेंगे, नॉट इन 11th हायर स्टडीज़. IFRS are based on fair value concept while Indian GAAP are based on historical cost concept. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वही था कि अभी जो एग्जांपल में पढ़ा था, अगर मैंने असेट 5 लाख के लिए तो मैं 5 लाख की ही दिखाऊंगा, वेदर उसकी करंट वैल्यू 4 लाख हो या 7 लाख. और फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, जो आपकी जो उसकी सही वैल्यू है वही लेनी है, जो एग्जैक्ट उसकी मार्केटेबल रियलाइजेबल वैल्यू है. सो मेजर डिफरेंस तो यही है. एंड विद दैट मेरा बच्चा आप ख़त्म कर जाते हैं चैप्टर नंबर 3. इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी मैं अभी साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा देता हूँ.